Hello students, very good morning to all of you. How are you all? I think you are very fine at your home, even also safe with your parents. Dear students, yesterday we have learned about air. In the chapter air and water. Air के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी. I hope you all have remembered that and understood very well. What is air? Air is a thing which is all around us. Air has weight. Air occupies space. Okay, and three types of air, different air. Moving air is called wind. Wind blows gently, it's called breeze, and wind blows strongly, it's called storm. सबको समझ में आया था storm, wind and breeze के बारे में? Yes. Okay, students. So yesterday we have also learned about why do we need air. So all the living things need air. Living things, what are living things? Living things are people, animals and plants which can grow. ठीक है, जो grow होते हैं that is called living things. So people breathe air through their nose. Animals also breathe in through their nose. But water animals like different types of fishes, octopus have a different body part that is called gills. So fish breathe in through their gills. Fishes जो रहती है वो अपने gills के through breathe in and breathe out करती है. After that plants. How do plants breathe? है ना, plants breathe कैसे करते हैं? So plant breathe with the help of stomata. And what is stomata? Tiny pores on their leaves. Plant has leaves. डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स है ना. प्लांट में पत्तियां होती है, लीव्स होती है, अ पार्ट ऑफ इट, एंड उस लीव्स के अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, टाइनी होल्स आते हैं, छोटे छोटे से गड्ढे होते हैं जो हमें इतना प्योरली दिखाई भी नहीं देते. सो वो उसके अंदर होते हैं. सो इट इज कॉल्ड स्टोमेटा, और उन्हीं छोटे छोटे गड्ढों को कहा जाता है स्टोमेटा. So with the help of stomata, they breathe. Okay, plants breathe करते हैं with the help of stomata. After that we have learned कि air जो है वो balloon, balls और tires में fill की जाती है, भरी जाती है. That's why it becomes very big, है ना. After that helps air जो है वो हमें जब हम burning fire करते हैं, fire को burn करते हैं, आग जलाते हैं, तब भी हमें एयर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. विदाउट एयर बर्निंग इज नॉट पॉसिबल. आफ्टर दिस वी हैव डन वन एक्टिविटी. in that activity there are 5 different activities are given. ओके, सो एक्टिविटीज में हमने देखा कि वो 5 एक्टिविटीज में से ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जो हमारी एयर को पोल्यूट करती है, यानी डर्टी बनाती है, यानी गंदा बनाती है. So that 3 types of activities make our air dirty. First one, firing crackers. Second one, vehicles का जो धुआं है ना, the smoke of vehicles. And the third one, smoke from फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज से निकलने वाले धुएं से एयर जो है वो पोल्यूट होती है. इसीलिए आपने कभी भी देखा है कोई सिटी के आसपास कोई फैक्ट्री हो? नहीं, वो काफी दूर रहती है. सो फैक्ट्रीज आर ऑलवेज फार अवे फ्रॉम द सिटी. सिटी में जहाँ लोग रहते हैं वहां से काफी दूर फैक्ट्रीज बनाई जाती है, बिकॉज वो पॉल्यूशन बहुत एयर को पॉल्यूट करती है, इसलिए वो काफी दूर में बनाई जाती है ताकि सिटी के पीपल तक के वो एयर ना पहुंचे और हम हमेशा हेल्दी रहे, हेल्थ ना हो. सो आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वाटर. डू यू नो व्हाट इज वाटर? क्या होता है वाटर? वाटर मीन्स पानी, जो हम एवरी डे पीते हैं, है ना. एंड मैम टोल्ड you have to drink every day 8 to 10 glasses of water daily, है ना. हर दिन आपको 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए. लेकिन जो पानी होता है ना, वो पानी होता है हम कौन कौन सी चीजों में वाटर का यूज करते हैं.
कैन नॉट लीव विदाउट वाटर, वी कैन नॉट लीव विदाउट वाटर, हम वाटर के बिना नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि वाटर हेल्प अस इन सो मेनी एक्टिविटीज, हमें वाटर काफी हेल्प करता है। नॉट इवन अस, इवन ऑल्सो एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर। We use water in many ways, हम अलग अलग तरीके से वाटर को यूज करते हैं। So how do we need water and how we use water? Here are some examples, some pictures are given here. You can see the pictures and you read it out. तो आपको समझ में आएगा क्या लिखा है फर्स्ट पिक्चर में, टू ड्रिंक, बॉय क्या कर रहा है, drinking. So water is useful for to drink, useful to drink, drink करने के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है वाटर। आफ्टर मदर क्या कर रही है, टू कुक फूड, फूड यानी खाना बनाने के लिए हम वाटर का यूज करते हैं, टू कुक फूड। टू bathe, टू bathe यानी नहाने के लिए, टू bathe। Then to wash clothes, to wash clothes, कपड़े धोने के लिए, है ना, कहाँ कहाँ जगह पे यूज होता है पानी, to wash clothes। To put out fire, कहीं आग लग गई हो तो to put out fire, आग बुझाने के लिए, आग जलाने के लिए हमें एयर का यूज होता है और आग बुझाने के लिए हमें वाटर का यूज होता है। एंड टू क्लीन आवर होम, टू क्लीन आवर होम, टू क्लीन आवर होम। So in this way we all need water in the so many different activities, काफी सारी different activities के लिए हम वाटर का यूज करते हैं। ओके, okay, so these are all the activities where we need water and we use water. The first one, to drink, पानी पीने के लिए। Second one, to cook food, to cook food यानी खाना पकाने के लिए। Third one, to bathe यानी नहाने के लिए। Fourth, to wash clothes, कपड़े धोने के लिए। And even also utensils, बर्तन और कपड़े धोने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, we need water। To put out fire यानी आग बुझाने के लिए, put out यानी आग को बुझाने के लिए हम वाटर का यूज करते हैं। And to clean our house, that is home, है ना, हमारे घर को साफ सुथरा रखने के लिए we use water. So in this way we use water in the different activities, which is also showing in your book in the page number 28. Okay students, I hope you all have understood this. Now how do animals and plants need water? अब हम लोगों को तो ये सारी एक्टिविटीज करने के लिए वाटर चाहिए, लेकिन प्लांट और एनिमल्स को क्यों चाहिए होता है वाटर? Animals need water for living, bathing and drinking. एनिमल्स को जरूरत होती है लिविंग यानी जीने के लिए, बाथिंग एंड ड्रिंकिंग। ठीक है, एनिमल्स को क्यों जरूरत होती है पानी की? फॉर लिविंग, ड्रिंकिंग एंड बाथिंग। ठीक है, ये तीन एक्टिविटीज करने के लिए एनिमल्स को वाटर की जरूरत होती है, लिविंग, ड्रिंकिंग एंड बाथिंग। बट व्हाई डू प्लांट्स नीड वाटर? बिकॉज प्लांट्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। अगर हम प्लांट्स में पानी नहीं डालते तो वो मुरझा जाते हैं और
मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, डेड प्लांट्स, दे आर कॉल्ड डेड प्लांट्स। ओके, सो प्लांट्स जो है पानी के बिना नहीं रह सकते। दे नीड वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड, उनको भी अपना खाना बनाने के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओके, दैट्स व्हाई ऑलवेज वी वाटरिंग द प्लांट्स, है ना। हम प्लांट्स में वाटर क्यों डालते हैं, उन्हें हम लाइफ रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए हम उनको वाटर करते हैं, वाटरिंग देते हैं। सो इन दिस वे प्लांट्स, एनिमल्स एंड वी पीपल, लिविंग थिंग्स, ऑल द लिविंग थिंग्स नीड वाटर। हैव यू अंडरस्टूड डियर स्टूडेंट व्हाट आई हैव टोल्ड यू टुडे? Okay, so dear students, tomorrow we will continue our class and to learn something more about water. So before that, what you have to do, you have to read out the water, the paragraphs given on the page number 29. 29 में जो पैराग्राफ्स दिए हुए हैं उनको आपको अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। Tomorrow I will explain you. Today we have done about water, how do we need water, in which activities we need water, and also animals and plants. Okay, animals, plants and we people are the living things. They need air and water both, है ना। हमको air और water दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। So living things need air and water, and what we need water to drink, to cook food, to bath, to wash clothes, to put out fire and to clean our house. And animals need water for living, drinking and bathing. And plants are the most important because they need water to cook their food, and without water they cannot live, है ना। So जो plants हैं उनको भी किस चीज के लिए वाटर की जरूरत होती है? फॉर लिविंग एंड टू कुक फूड। ठीक है, खाना पकाने के लिए उनका खाना जो है वो एक प्रोसेस के थ्रू बनता है। वो जब आप जो बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब आप सीखेंगे। ओके, सो जो प्लांट्स का जो खाना होता है वो एक प्रोसेस के थ्रू पकता है, वो आप बड़ी क्लासेस में सीखेंगे ना। You have to understood that कि plants को water क्यों जरूरत होता है? For living and to cook food, for cooking the food. In this way we have learned so much about the water. So dear students, tomorrow we will see कि water को हमको water की जरूरत तो होती है, लेकिन water आता कहाँ से है? Okay, so tomorrow I will explain you about the sources of water, where we get from, where water we get from, कहाँ से हमें पानी मिलता है। And tomorrow we will continue our class. So bye dear students, take care, have a nice day. Up to that, till then you have to read out page number 29. Okay, so bye students.